ने हौली हौली। ਉਹ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। नहीं मुफ्ती साहब का आज रहनी है जनाब। एक मिनट फोन आ गया, माजरत चाहना। एक मिनट से कर लो फोन पे गल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਮੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਜੇ ਆਣਾ ਹੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਆਖੇਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਤਬਲੀਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਯਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਲੀਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਮੂਡ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲਾ ਛੜੀਏ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ। एक ते स्वाडे झूठ स्वाडे इल्जाम, ये जिले वेखे भाई इल्जाम हर गल इल्जाम, झूठ बेईमानी इल्जाम लांदे हो अहमदियत ते। जिले मेरे सामने मैं खुद जाके मुताला किया, स्वाडे सारे इल्जाम साबित हो, झूठ साबित होए, झूठ बेईमानी साबित हो गए। दूसरा, कुरान की किसी आयत में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम नू नहीं फरमाया कि वो बाहयात जिंदा आसमान ते मौजूद। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं है जिसमें उन्होंने फरमाया हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हयात आसमान ते मौजूद। लेकिन वो आसमान ते आ जाएंगे, उड़ के गए थे आसमान ते उड़ के आ जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पूरे कुरान में किसी आयत में अल्लाह ताला ने आखिरी नबी नहीं फरमाया। खुद तावीला करनिया पैनिया, ईमानी अकीदे ते तावीला करनिया पैनिया। कुरान दी दूसरी गल्लां ते करनिया पैन, कोई हरज नहीं। लेकिन जेड़ा ईमानी अकीदा है, ईमानी अकीदा थोड़े नजदीक खुद तावील कीते बगैर थोड़ा ईमानी अकीदा ही नहीं। टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी खत्म। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹਯਾਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 1 ਸਫਾ 593 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਅਤ-ਤੌਬਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 33 ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 431 ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਇਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ। मुफ्ती साहब तुसी मिर्जा गुलाम अहमद साहब की किताबों चो ते मैं सवाल नहीं कीता। छोड़दा मज तले हो जाने दुए पासे हो, क्यों सुहाने ये काम करते हो मुफ्ती साहब? माशाल्लाह आलम हो, इल्मी हो, मेरा सवाल ते है ही नहीं कि मिर्जा साहब की किताब विच की लिखिया है। मैं जेड़ा अपना कन्वर्ट होया, मैं किताब नहीं पढ़ी जनाब, मैं ते कुरान पढ़िया है। कुरान चो किसी आयत में मैंने नहीं मिलया कि ईसा अलैहिस्सलाम बाहयात जिंदा आसमान ते मौजूद हैं। और ये अकीदा ताई है मैं छोड़या कि कुरान में नहीं है। और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है,
एक हदीस नहीं है। सुन सारे मुसलमानों को पता है, सुन आलमा को पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं है। पूरी जिंदगी जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे मौजूद है। कौन भी बोले भाईजान मेरी बारी, मेरा टाइम दोबारा शुरू होएगा। हाँ मैं अच्छा नजीर टाइम साहब, खत्म हो गया जी, कोई भी नहीं मेरा बोलिया टाइम जनाब। दोबारा शुरू होएगा जी। ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ खामोश हो जाओ, एक मिनट खामोश हो, एक मिनट खामोश हो। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਲੱਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਉਹ ਮਿਊਟ ਜਨਾਬ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਦਲੇ ਲਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੇ ਜਨਾਬ, ਸੂਰਾ ਅਤ-ਤੌਬਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ मिर्जा साहब कहते हैं कि ये आयत जिस्मानी और सियासी मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेश गोई है, और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए से ज़हूर में आएगा, और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो इनके हाथ से दीन और इस्लाम जमी अफाक और अख्तार में फैल जाएगा। ये कुरान की आयत है, कोई मैं लैला मजनू की कहानी नहीं तुहानूं सुनाई। तुसीं आंदे कुरान ने कहानियां, वो पहले भी मैं कुरान की कोई आयत सुनाई थी, सूरा हज़ाब की आयत 40 रूहानी खज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 431 के उत्ते मिर्जा साहब कहते हैं कि खातमन नबीयीन का मतलब होता है खत्म करने वाला नबियों का। पहले भी कुरान की कोई आयत सी तो हुण भी कुरान की कोई आयत है, एक खत्मे नबूवत के हवाले नाल ते एक रफ़ा और नज़ूले मसीह के हवाले नाल। तुसी तहकीक किहड़ी कीती? सवाल ते असीं तुहाडे कोल कर रहे, तुसी उल्टे साडे कोल सवाल करी जांदे हो पे। जवाब दिओ, तुसां किहड़ी तहकीक कीती सी? टाइम खत्म होया। जी जनाब हुण माइक ओपन करन दी वारी है। भाजी कित्थों मुफ्ती साहब ऑडियो वीडियो दी रिकॉर्डिंग लेके आवां ते साडे सामने वीडियो ला के सो विखा, फिर तुसी मनोगे। मैं सो दस्या मैंने कुरान दी किसी आयत चो नहीं मिलिया, मैं मिर्जा साहब दी किसी किताब दा नाम नहीं लिया। मैं कुरान दे छोड़ने तुसी फट जाके मिर्जा साहब दी ओ किताबां ले आंदे हो, ओ चीज़ां ला के तका देंदे हो जिले उन्हां नू ऐलान भी नहीं होया थी, उस तो पहले दी चीज़ां तका देंदे हो। बड़े तेज हो माशाअल्लाह। किसी भी नबी दा अकीदा वेखना है तो जिले ऐलान भी हो जाए उस तो बाद जिले अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक वो अकीदे बनांदा है उले वेखे जांदे। पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केड़ी नमाज़ां पढ़ी सन ऐलान वही तो, केड़ी रमजान दे रोजे रखे सन, केड़ा हज ज़कात कीती थी। ते अकल दी गल यही है जिले ऐलान वही होंदा है उस तो बाद अकीदे बनदे। लेकिन आप जो ये आयतें बता रहे हैं इनकी तावीलें कर कर इसमें किसी आयत में आखिरी नबी नहीं फरमाया गया, कहीं नहीं फरमाया कि अब नबी कोई नहीं आएगा। ये आपके अकीदे चलो हैं। टाइम खत्म होया जी, टाइम खत्म होया। अच्छा गुजारिश ये है कि जनाब सवाल तो आपसे ये हुआ था कि आप कह रहे हैं जी मैं तहकीक करके रिसर्च करके, वो केड़ी तहकीक कीती तुसां वो नहीं दसदे पे तुसी। रही बात है कि तुसी जी मिर्जा जी दी किताबां, भाई मिर्जा जी दी यहाँ ते तुसी कहो कि मिर्जा जी ने जेड़ा वे कुरान दी हिस्सों हट के गल्लां कीतियां ने, अपनी कहानियां ते गप्पां मारियां ने, ते कह दिओ ऐलान करो। और मैं हवाला देना पे तो कुरान दी आयत ही लिखी है, वो अपनी किताब पट के ते वेखो। जाओ खोलो रूहानी खज़ैन जिल्द 1 सफ़ा 593 और रूहानी खज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 431। वो तो कुरान दी आयतां लिखियां ने जनाब, तुसी पता नहीं की कमाल लो, तुसी ते हद ही हो गई है। ते तुहाडे कोल सवाल है नहीं सी, सवाल है सी कि तुसी केड़ी तहकीक कीती कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 34-35 ਸਾਲ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। मौलवी साहब मुफ्ती साहब सुनाई नहीं देना, या मेरी आवाज कोई और है या मैं किसी और जबान में गल पे करदा। सुन अपने मफाद तो इलावा कोई गल मेरे ख्याल समझ नहीं आती।
ना थोड़े अंदर जांदी है। मैं कहना कुरान दी किसी आयत विच अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आखिरी नबी नहीं फरमाया, ना कुरान विच किते फरमाया कि हुण मैं नबी नहीं भेजांगा, बल्कि कुरान कह रहा है कि मैं नबी भेजांगा जिले नबी आन थोड़े विच उन्हां ते ईमान लेके आना। और मैं केड़े अकीदे दसां? मेरा नमाज हुई है, मेरा रोजा हुई है, मेरा हज ज़कात हुई है, कुल्लो शरीयत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है। लेकिन दो अकीदे जैसे जेड़े तुसां कुरान तो बाहर बना लेन, एक ईसा अलैहिस्सलाम दा जिंदा आसमान ते होना, दूआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आखिरी नबी होना, उन्हां तो बाद नबी कोई नहीं है, पर ईसा अलैहिस्सलाम ने उत्तों ले आना, उड़ के आ जाएगा। लेकिन माशाल्लाह कितनी इल्मी और अकली गल है स्वाडी, रहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आखिरी है, आन के दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी। टाइम खत्म होया जी, टाइम खत्म होया जी, टाइम खत्म होया जी। हाँ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਛੇੜ ਛੜਿਆ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ कहता है कि ਨਬੀ ਮੈਂ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कोई कुरान दी आयत कोई तुसी पहले पेश कीती या हुण पेश कीती या हदीस कोई एक दस दिओ, या अज तक तारीख दे विच जिन्ने भी मुनाजरे मेरे तुहाडे नाल होए ने कदी तुसी कदी कोई मैं ना भुल के कुरान दी कोई आयत या हदीस पेश कीती होए है? ते जेहड़ी तुसी आंदे हो ना पे कुरान कहंदा कि मैं नबी भेजूंगा, हो गया थोड़ा मिनट हो गया मुफ्ती साहब माफी चाहता किथे 54 मिनट सेकंड होए ने मेरे को स्टॉप आ चली, मैं दोबारा टाइम शुरू करन लगा। चुप कर जाओ हुण, गलत गल है, गल गलत है, सारी दुनिया दे सामने में, सारी दुनिया दे सामने इंज ना करो। नहीं भाई गलत गल है ना भाई, कानून कानून सब वास्ते बराबर होंदा है। हो गया है ना भाई ना, अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने वल ना वंडो मुफ्ती साहब, खुदा दा खौफ करो। एक मिनट पूरा हो गया। हाँ हुण मैं गल करना। और भाई जान जेड़े दूए 70 बंदे तले बैठे दे हो, वो स्वानू समझ आ रही है या मुफ्ती साहब की तरह स्वानू ही नहीं समझ आ रही? मैं अकीदे क्यों छोड़ रहे? कहते तू गप्पा मार रहे। और मैं कह रहा कुरान की आयत दिखाओ जिस विच अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आखिरी नबी फरमाया है, और कुरान की आयत विच अल्लाह ने फरमाया कि हुण मैं नबी नहीं भेजांगा। सूरत अल अराफ दी 35 आयत विच अल्लाह फरमाता है कि मैं नबी भेजांगा, उन्हां ते ईमान लेके आना। लेकिन मैं गप्पा मार रहा मुफ्ती साहब नू क्यों नहीं समझ आ रही है गल्लां? ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान ते मौजूद हैं, थोड़ा अकीदा है कुरान दी केड़ी आयत विच अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम नू जिंदा आसमान ते फरमाया? और हदीस कोई दिखा दो जिस विच आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होए कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान ते मौजूद। सुन उलमा नू सारा पता लग गया, लेकिन आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इस दीन दा नहीं पता सी। और तले सुनन वाले आओ मुफ्ती साहब नू समझाओ कि सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ते तो आपने आयतें दिखानी है जिसमें दिखाना है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा। चलो टाइम खत्म होया जे हुण, हुण बोली जाना जे, अपना भी तो कुछ वेख लिया करो ना। अच्छा गुजारा ये है कि सूरह आराफ की आयत 35 आपने जो पेश की है ये भी अब झूठ बोला है आपने कि ये मुसलमानों वाली या कादियानियों की, वो आपने बताई नहीं है। ये ज़रा बता दे ज़रा, मुसलमानों वाले कुरान की के या कादियानियों वाले कुरान की ये 35? हेलो और मैं जवाब देना है फिर तल्ला साहब दसिया जे सूरह आराफ। आप देख लें, अगर आपकी 35 नहीं होगी तो आपकी मेरे मोहतरम प्यारे भाई एक आयत नीचे होगी, 34 होगी। 34 अच्छा, तो 34 च तो ऐसा कुछ लिखे ही कोई नहीं मुसलमाना वाले कुरान दे विच, कोई लिखे नहीं जी, उते उंज लोंज आए थे उंज कोई नहीं इन्ना लिखिया है जे ते कढ के बहा दियो तुसी फिर। 34 च ते कख भी नहीं लिखिया, कख भी नहीं लिखा देखो कुरान की आयत में। ओ भाई नहीं ना, जेड़ी तुसी गल इल्मी बनने जो तुसी इल्म की बात आपने फरमाई भाई, ओ होर कुछ वे इस मौजू ते नहीं कि मैं नबी भेजता रहूंगा, वो इस मौजू ते नहीं है। सूरह आराफ दी आप ही चुक के वेख लो, आयत 34 दे विच, आयत 34 च कोई नहीं है। तुसी लड़दे हो पे, नहीं तुसी ना लगदा है लड़न दे इरादे चो, ना ना लड़न दे इरादे चो, ना 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 लम्बा भी दे, मैं किसी ना नहीं लड़या पाजी। ते फिर मैं कहना ते पिया वा ओहदे विच आयत 34 च कोई नहीं जे है। सूरह आराफ आयत 34 सॉरी नहीं होगी, मेरी 35 विच नहीं ए वेलो लिखिया जे वाली कुल्ली उम्मतिन अजलुन फाइजा जा
आजालुहुम ए वाली आयत ये हुई आयत है कि और कोई है? नहीं नहीं, ये नहीं आयत है, इस तो अगली आयत पढ़ो। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ਉਹ रसूलुल्लाह। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। औलाद आदम, अगर हाँ तुम्हारे जी। पास रसूल आवे जो तुम ही में से होंगे, जो तुमसे मेरे हाँ। काम मेरी आयतें बयान ਇਹ करें, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ कोई उनसे ਕੁਰਾਨ ਦੀ आयत इकरार नंबर करेगा, 36 है। दुरुस्तगी करेगा, उसके लिए ना कोई अंदेशा है ना गमगीन होंगे। जो उनसे तकब्बुर करेगा मुफ्ती साहब की तरह, जो उनसे मुकाबला करेगा ब्रैकेट मुफ्ती साहब की तरह, वो जान ले कि उसका ठिकाना जहन्नम है। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ टाइम ਹੁਣ नहीं शुरू होया थोड़ा है। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ 36 ਨੰਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 35 ਨੰਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਰੋਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ 34 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 34 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਬਨੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਬਨੀ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਹਿਜੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਬਨੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਨਬੀ